ओके गाइस, सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड राइट। कल वाले सेशन में मैंने आप लोगों को एक डेटा दिया था, एम्प्लॉय का डेटा। राइट। सॉर्टिंग कल हमने किया था ना पावर बीआई में। तो हो गया था गाइस सबका सॉर्टिंग वाला पार्ट। सॉर्टिंग कर पा रहे हो कोई भी डेटा सेट पे? ओके, so today we just cover the ETL engine, right? ETL part of Power BI, right? Power BI का जो ETL part है that is Power Query, right? Power Query में हम लोग करते क्या है? Power Query में हम लोग पार्ट काम करते हैं ETL का, right? ETL means that extracting data from different data sources, right? Then transforming data to fit in report, right? And then उसके बाद से हम finally लोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, right? In Power View जहाँ से हम क्रिएट करते हैं विजुअलाइजेशन एंड ऑल, राइट? So all these things, right, we are doing in Power Query, right? Now let's see, right, where we have this part in Power BI and हम इसमें किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. We just try to learn that. So under Home tab, right, you will go here on this transform, then just click on transform data. Now it will just write navigate us to right this part here again. यहाँ पे आपको नेविगेट कर देगा, राइट? राइट नाउ इट इज अनटाइटल्ड पावर क्वेरी एडिटर, राइट? सो राइट नाउ वी आर इन पावर क्वेरी एडिटर. अब पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जैसे हमने बोला कि सबसे पहला जो टास्क इसका होता है एक्सट्रैक्ट, राइट? एक्सट्रैक्शन मीन्स दैट डिफरेंट डेटा सोर्सेस है, उससे डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके पावर क्वेरी के अंदर लेकर जा सकते हैं, राइट? सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द सेम थिंग. सबसे पहला इसका टास्क है दैट इज न्यू सोर्स, राइट? यहाँ से कोई भी डेटा सोर्स है, यू कैन पिक एंड देन यू कैन जस्ट राइट सेलेक्ट एंड देन यू कैन जस्ट select the data from that source. या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर एंड here we'll get the list of all data sources, right, we have, right, from which we can connect the Power BI, right? इसमें आपका एक्सेल है, CSV फाइल है, XML है, JSON है, right? Even we can connect the folder also, then PDF, right? Parquet यानी कि जितने भी डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं जहाँ पे हम जनरल डेटा को स्टोर करते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ we can even connect the data from, right, we can connect the Power BI from, right, even all the data sources, right, where we have data available, where data is available, right? ये सारे इतने सारे डेटा सोर्सेस हैं जहां से हम इसको डेटा को पिक कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर, राइट? देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑल था, राइट? बट सपोज मुझे ओनली फाइल वाला उसे कोई वर्क करना है, देन सी राइट हियर वी हैव दीज आर सम फाइल्स, राइट? एक्सेल, CSV, XML, JSON, folder, PDF, then SharePoint, right? So all these things, right, we have, and we can even connect the same to Power BI itself, right? तो इस तरह से डेटाबेस है, राइट? ये सारे डेटाबेसेस हैं जिससे कि हम पावर बीआई कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, एंड इट इज राइट गेट द डेटा हियर. सी these all are right databases, right, in market. SQL Server, Access, right, MS Access, then SQL Server and DC services, Oracle database, IBM DB2, IBM Info. There are lots of right databases available. Then next, right, similarly here we have the Microsoft Fabric, then Power Platform. Even right, we can get data from Power Platform also. कहीं पे हमने workflow बनाया है and उसका use कर रहे हैं for data extraction. Then if we can do that too, right? Then Azure, right, online services, right? So even we can write, we can just extract data from, right, these different data sources also, right? Now I'm just going to take data from Excel itself, right? पहले हम Excel वाला pick करते हैं, simple होता है. So I just pick this data from Excel. Excel से pick करके and I'll just pick the right orders file. So here we have orders. I'll just click on this. Then and this data set is loaded, right? यहाँ पे आएगा. Then it will just right will select the table here. अब एक एक्सेल वर्कबुक आप दे रहे हो एंड उसमें यदि मल्टीपल सीट्स है, राइट, तो हर एक सीट को वो एज ए सिंगल टेबल कंसीडर करता है, राइट? तो राइट नाउ इस जो हमने डेटा पास किया है उसमें सिंगल सीट ही है, राइट? सो दैट्स व्हाई जस्ट शोइंग हर सीट, राइट? दैट विल गिव यू द प्रीव्यू ऑफ डेटा एंड देन आई क्लिक ऑन ओके. नाउ इट विल जस्ट लोड द डेटा इन डेटा दे रहा है, राइट? एंड इसने बाय डिफॉल्ट, राइट, इसने इसको आइडेंटिफाई करने कुछ स्टेप्स है इसने खुद ही परफॉर्म कर दिए, राइट? तो डेटा हमने लोड किया उसके बेसिस पे, राइट? उसने सबसे पहले इसने बोला कि ठीक है जो सबसे फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर कंसीडर कर लो, राइट? सो हियर इट इज राइट कंसीडर द फर्स्ट रो एज हेडर. दैट इज द फर्स्ट टाइम जो इस डेटा को हमने यहाँ पे नेविगेट किया
एंड हियर यू कैन सी दैट डेटा इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। एंड इसने आइडेंटिफाई कर लिया एक्सेल ने ऑटोमेटिकली, राइट, कि इसका जो हेडर कौन सा होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो हेडर है दैट इज टेक्स्ट डेटा टाइप, एंड इसके ठीक नीचे जो डेटा है दैट इज वी हैव डिफरेंट, राइट। किसी में नंबर्स है, किसी में डेट है, किसी में राइट स्ट्रिंग है। तो इसलिए इसने कंसीडर किया कि ये वाला जो रो होगा दैट वुड बी समथिंग हैवी ऑफ द हेडर वन, राइट। एंड इसको इसने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, राइट। नाउ वी आर डन। ये जो स्टेप है इट हैज परफॉर्म्ड बाय itself by power query itself। then C1 यहाँ पे आ रहा था, हमने इसको करके एडिट करके विल मेक दिस एज ऑर्डर्स, राइट। देन ऑर्डर्स टेबल बनाया है इसका। नाउ इट इज चेंज, क्वेरी इज चेंज हियर। नाउ वी आर डन। अब हम आते हैं पावर क्वेरी के डिफरेंट टैब्स पे, राइट। सो राइट नाउ वी आर इन होम टैब, राइट। एंड इस होम टैब के अंदर या वी राइट डिफरेंट कमांड्स। सबसे पहला पार्ट है दैट इज क्लोज एंड अप्लाई, राइट। क्लोज करना है जो भी हमने यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे क्लीन अप एक्टिविटी करेंगे, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी करेंगे। आफ्टर दैट, राइट, वी हैव जस्ट टू क्लोज एंड अप्लाई। जैसे इसको हम क्लोज करेंगे एंड अप्लाई करेंगे दैट विल गो टू पावर व्यू हियर, राइट। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक। एंड इसमें हम क्लिक कर देंगे अप्लाई चेंजेस, एंड विल गेट अप्लाइड। एंड यहाँ पे डेटा यहाँ पे आपके पास अपीयर हो जाएगा, लोड हो जाएगा, राइट। राइट नाउ इट इज नॉट पब्लिश्ड, राइट। ये यहाँ पे आपके पास राइट क्लीनर व्यू पे है, टीटीएल वाले पार्ट पे अवेलेबल है, इसको हमने अभी पब्लिश नहीं किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव द सोर्स, राइट। अगेन, राइट, वी हैव these different sources and then वहाँ से डेटा पिक करना है, then we can pick that too, and then here we have the different sources। suppose मुझे वेब से डेटा पिक करना है, let's click on this waves and यहाँ पे हम URL पास कर देंगे, राइट। so if you have already URL then URL पास कर सकते हैं, राइट। नॉट ओनली दिस, राइट, बट यदि हमें URL का पार्ट पास करना है एंड देन दूसरे को यहाँ पे, राइट, हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे पास करना है, then even, राइट, दिस कैन बी डन। तो आई जस्ट कीप दिस बेसिक फॉर नाउ, एंड देन यहाँ पे जाके हम पिक कर लेते हैं एक वेबसाइट जहाँ से डेटा को पिक करना है, राइट। तो जस्ट पास हियर, और विल से दैट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। नाउ आई जस्ट पिक द डेटा फ्रॉम विकिपीडिया, डेटा फ्रॉम विकिपीडिया। तो हियर वी हैव, राइट, विकिपीडिया टू। यहीं से हम पिक करते हैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन, एंड इसमें से हमारे पास कुछ टेबल्स है उसको हमें पिक करना है। तो वी जस्ट मूव अहेड एंड देन हियर वी हैव सम टेबल्स। सारे डिफरेंट टेबल्स, राइट। मुझे कोई एक टेबल पिक करना, सपोज आई वांटेड टू पिक दिस वन डेंसिटी, राइट, मोर देन 250 पीपल पर स्क्वायर फीट पर किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो कंट्रीज है, टॉप 10 कंट्रीज, आई जस्ट वांटेड टू पिक दैट। तो आई गो एंड देन पिक द यूआरएल फ्रॉम हियर, राइट। एंड इसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे इसमें, पास दिस, राइट। अब डेटा इसमें क्या है कि डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वेबसाइट से डायरेक्ट, राइट। वेबसाइट पे भी उस टेबल का डेटा चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, आपके पावर बीआई रिपोर्ट में भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग एज अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो इट विल जस्ट लोड एंड देन इसमें जितने भी टेबल्स होंगे इस यूआरएल पे, एचटीएमएल कोड पे, राइट, हर एक टेबल को ये लिस्ट कर देगा यहाँ पे नेविगेटर पे। तो इसमें जो टेबल है, राइट, उसको हम पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो हिस्टोरिकल 10 मोस्ट डेंस, राइट, पॉपुलेटेड कंट्री, इसको हमें पिक करना, यही वाला इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था। So I just right pick this one, right, then I just click OK. Now we are done।
तो डेटा यहाँ पे लोड हो गया आपका। अब इसमें भी देखोगे कि सर्टेन स्टेप है, इसने खुद ही स्टेप परफॉर्म किया है। तो हियर भी फर्स्ट इज सोर्स, राइट। सोर्स इज समथिंग लाइक दिस, पूरा HTML कोड था उसका, दैट इज लोडेड हियर, राइट। देन इसमें से हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट, राइट, राइट डेटा फ्रॉम HTML। HTML का डेटा हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, राइट। क्लिक हियर, देन इसने क्या किया यहाँ पे, ऐड टेबल यूजिंग, राइट, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसने ये वाला जो टास्क, राइट, इट हैज ऑलरेडी परफॉर्म इटसेल्फ। तो here we have the data and then इसने एग्जांपल पिक किया एंड उसी वहीं से डेटा को पिक कर लिया इसने। समथिंग गिव द HTML, राइट, एंड देन उसी से ये डेटा को यहाँ पे लेकर जा रहा है, राइट। सो here we have the this one too, right। देन आई जस्ट कैंसिल अगेन, राइट, जस्ट मूव अहेड। अब इसमें भी इसने देखा कि हेडर इसको दे दो, तो इट्स राइट प्रॉम्प्टेड टू हेडर। नाउ हियर वी हैव द हेडर आल्सो, एंड देन इसका टाइप चेंज करवाना है, तो चाहे टाइप भी इसने चेंज कर दिया, राइट। सो नाउ हियर वी हैव राइट दिस इंफॉर्मेशन आल्सो, एंड ये जो इंफॉर्मेशन हमने किया है दैट इज फ्रॉम वेब इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, परफॉर्म नहीं किया है। बट अब मुझे क्या करना है, जो डेटा हमने वेब से लिया है उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे परफॉर्म करना है, right? You first go here, right? Then in this, right, Singapore, Bangladesh, right, and Palestine, node 399, right, and node 4, ये जो नोड करके आ रहा है, राइट, इसको हमें हटाना है, राइट। दिस इज नॉट लुकिंग राइट फाइन। सो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अगेन, होम टैब के अंदर ही यहाँ पे जाओगे, देन हियर विल रिप्लेस वैल्यू पे जाके देन विल राइट फाइंड वैल्यू फर्स्ट एंड देन विल रिप्लेस। लेट मी सी, राइट, इफ वी कैन रिप्लेस द सेम like this, asterisk हमने यहाँ पे लगाया, right, and then I'll see the replace with nothing, I'll click OK। now we are done, right। इसमें वाइल्ड कार्ड चल नहीं रहा है, so we'll have to just select this, like कॉपी किया इस पे, then we'll go on right here and इसमें हम वैल्यू डाल देंगे and we'll just try to place the same with nothing, I'll click OK। now we are done, right। नोट 4 करके आ रहा है, इसे भी हमें हटाना है। I just try select this one too, copy किया, then we just go and then select this replace also, replace this। now we are right। अब यहाँ पे हमारे पास क्लीन डेटा आ गया है, राइट। सो पॉपुलेशन हियर भी है, देन एरिया किलोमीटर, राइट, देन डेंसिटी पॉपुलेशन पर किलोमीटर। ये जो 2 करके आ रहा है, राइट, किलोमीटर स्क्वायर है, राइट, बट इट इज राइट समथिंग लाइक लुकिंग लाइक 2। तो इसको भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, सिंपल सा पर किलोमीटर लिखना है, राइट, देन वी कैन रीनेम द कॉलम नेम 2 ऑल्सो, राइट। सो अभी तक यहाँ पे हम लोग ठीक है। आई जस्ट राइट कीप दिस एज इट इज एंड देन आई जस्ट सेव। अब इसमें ऑर्डर्स में जाते हैं, कोई कंट्री का इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास इसमें, तो कंट्री भी ये है, बट कंट्री में हमारे पास कौन सा कंट्री है, ओनली वन कंट्री भी है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें क्या क्या है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स कहीं पे इसमें है नहीं, इंडिया, इसराइल, ओके। अब मुझे क्या करना है, अगेन आई जस्ट ट्राई टू मूव अहेड, राइट, एंड कुछ किसी दूसरे डेटा सोर्स से भी हम डेटा को पिक कर सकते हैं। सपोज मुझे डेटा पिक करना है PDF से, सो अगेन आई गो ऑन दिस होम टैब पे, देन विल गो ऑन क्लिक हियर एंड देन डेटा आई एम गोइंग टू पिक फ्रॉम PDF फाइल। तो फाइल्स पे जाएंगे एंड देन हियर जस्ट पिक द PDF, जस्ट क्लिक ऑन दिस PDF, कनेक्ट, राइट, and it will just allow you to connect this data set। So now here we have just picked data from PDF2, right। जो डिफरेंट मूवीज है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस वाले PDF फाइल में अवेलेबल है। अब मुझे इसमें से एक किसी एक मूवी को, राइट, मूवी को पिक करके देन विल जस्ट क्रिएट रिपोर्ट हियर। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा डेटा हमारे पास है। आइदर यू को जस्ट पिक एनी, राइट, एडमिशन कितना हुआ, राइट, ईयर में किस ईयर में कितना एडमिशन है, सो दैट इंफॉर्मेशन जस्ट टेलिंग अस। देन क्या है ये इंफॉर्मेशन, ये कॉलम 1, राइट, नो फाइन।
तो राइट नाउ वी आर जस्ट रीडिंग डेटा फ्रॉम पीडीएफ। राइट, पीडीएफ फाइल में जो डेटा है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम डेटा को, कुछ टेबल्स को, राइट, टेबल की वैल्यू को वी जस्ट पिक किया। सो आई जस्ट ट्राई टू मूव अहेड। अब यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू पिक दिस वन, राइट। इसमें देखो यहाँ पे एडमिशन, राइट, मिलियन, एंड देन ये ईयर का इन्फॉर्मेशन है, किस किस साल में क्या इन्फॉर्मेशन, राइट, हमारे पास आया था। दैट इन्फॉर्मेशन वी आर जस्ट गेटिंग, राइट। आई जस्ट क्लिक ओके नाउ, राइट। जब ये लोड होगा तो फिर हमें यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा इस पे, राइट। इट जस्ट गेट लोडेड हेयर। बट इसमें देखो कि जब लोड हुआ है पीडीएफ से, पीडीएफ फाइल से, तो इसने यहाँ पे हेडर इसको नहीं दिया, राइट, बाय डिफॉल्ट। आई विल से दैट दिस इज समथिंग हियर एट द फील्ड डेटा, राइट। इसका इसका लोड हुआ है, देन इट इज, राइट, इसने यहाँ पे इसका हेडर वाला पार्ट नहीं दिया है, राइट। सो फॉर दैट आई जस्ट से दैट यूज फर्स्ट रो एज हेडर, जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट। नाउ वी आर डन, राइट। सो हियर वी एडमिशन, देन ईयर हियर वी 2019 2020 2021, राइट। देन चेंज कितना हुआ है डिफरेंट दीज ईयर्स में, so all these information it is showing, right। अब ये जो कॉलम में यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये जो 2019 2020 2021, राइट, मुझे इसको कॉलम में नहीं रखना है, राइट। मुझे इस पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एंड इवन वी कैन डू दैट। तो राइट, अब बट इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम देखते हैं इसमें और क्या क्या हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है जस्ट टू परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटी इन पावर क्वेरी। फिर होम के अंदर गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिप्लेस देखा था, राइट। देन इसी के अंदर आओगे होम के अंदर ही, एंड देन नेक्स्ट ईयर ट्रांसफॉर्म, राइट। ट्रांसफॉर्म के अंदर भी, राइट, वी हैव, राइट, सर्टेन वैल्यूज अवेलेबल, जिसका कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो मुझे सपोज यहाँ पे एक सर्टेन डेटा टाइप है, उसको डेटा टाइप सेट करना है। अभी जो इसमें वैल्यू है दैट इज नंबर हियर, राइट। ये नंबर होना चाहिए, बट इसका डेटा टाइप यहाँ पे एबीसी दिख रहा है, दैट इज टेक्स्ट दिख रहा है हमें। अब मुझे इसको ठीक करना है, राइट। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, देन क्या, फर्स्ट विल गो टू रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज पे जाके देन विल क्लिक ऑन रिप्लेस वैल्यूज, जस्ट क्लिक हियर, राइट। एंड देन इसमें जो वैल्यू हाइफन है, राइट, इसके जगह पे हमें जीरो कर देंगे, बिकॉज हाइफन है, इसी के कारण इसने क्या किया, इसको टेक्स्ट बना दिया है, राइट। नाउ, राइट, वी हैव एवरीथिंग, राइट, नंबर्स। देन अगेन विल गो एंड देन चेंज इट्स डेटा टाइप। सो यहाँ पे टेक्स्ट अभी दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे टू डेसिमल नंबर, राइट। नाउ इट इज चेंज्ड, एंड नाउ हियर वी हैव, राइट, करेक्ट वैल्यू विद अस। अब यदि इसको मैं पब्लिश करता हूँ, राइट, लेट मी जस्ट पब्लिश दिस, एंड इसे मुझे, राइट, रिपोर्ट करना है, राइट, मंथ ऑन मंथ यहाँ पे देखना है, इसका हमें रिपोर्ट बनाना है। देखो क्या चैलेंज आएगा, राइट, एंड देन फिर इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, विल आई डू दैट। तो वी हैव थ्री डिफरेंट डेटा सोर्सेज, राइट, थ्री डेटा सोर्स में डेटा को लोड किया है। राइट नाउ गोइंग टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी हैव लोडेड फ्रॉम पीडीएफ फाइल। So now, right, we are just done, and then we'll go here, right। यहाँ पे देखो कि पावर जो व्यू है, इसमें भी डेटा यहाँ पे आ गया है हमारे पास, राइट, फिल्म का डेटा। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है रिपोर्ट्स, राइट। आई जस्ट वांटेड टू यूज दिस एज ए, राइट, स्लाइसर, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिशन, राइट, टोटल एडमिशन, राइट। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस टेबल रिपोर्ट हियर। तो जाएंगे, टेबल हटा देते हैं, मुझे टेबल नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट हियर द दिस कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम, एडमिशन, राइट। देन आई जस्ट पिक किया था 2021। अब यहाँ पे देखो हर एक ईयर का डेटा जो है, इट इज जस्ट, राइट, शोइंग लाइक दिस, राइट। हर एक साल का डेटा हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक एक करके, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिख रहा है टोटल, राइट, एक सर्टेन ईयर का डेटा दिख रहा है। एंड यदि हम इसको फिल्टरिंग करना चाहें कि किस साल में कितना था, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि ये कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है, कॉलम के फॉर्म में, कॉलम के नेम के फॉर्म में आ रहा है, राइट। मुझे इसको ठीक करना है, राइट, सो दैट हम इसको सर्टेन ईयर का, जिस भी ईयर का डेटा हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल्टर कर सकें, राइट। अभी जो हमने रिपोर्ट बनाया है,
उसमें किसी एक ईयर का ही डेटा ये लेगा, राइट। यदि हम इसको ऐड करेंगे भी तो उसके ड्रिल में इसको चला जाएगा, ड्रिलिंग में आई थिंक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा इसका डेटा। तो आई जस्ट वांटेड टू राइट फिक्स दिस, एंड इसको हम फिक्स कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर ही, right? ऐसे फिक्स ये नहीं। सो आई रिमूव दिस अगेन, एंड देन फिर से हम चलते हैं पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में जब जाओगे आप ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट पे, राइट, देन हियर बी ऑप्शन टू ट्रांसपोज एंड रिवर्स रोज, राइट। इससे काम नहीं चलेगा हमारा, ये जो जितने भी ईयर्स हैं, राइट, इन तीनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। देन चेंज परसेंट ऑन 2019, राइट, ऑन 2019 जो है उसका चेंज परसेंट क्या था प्रीवियस से, तो दैट इज समथिंग राइट जस्ट गिविंग अस। इन तीनों को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, राइट। एंड यदि हमें इसको भी लेकर चलना है देन इवन जस्ट राइट पिक दैट, बट मैं इसको जैसे है वैसे ही रखता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट किया, देन हियर वी हैव ऑप्शन टू राइट अनपाइवेट कॉलम्स। इस पे जाके जस्ट क्लिक हियर एंड अनपाइवेट कॉलम, राइट। दो ऑप्शन है, ये जो सिलेक्टेड है फिर उसे उस पर अप्लाई करना है हमें, देन वी जस्ट यूज दिस वन। यदि सिलेक्टेड है उसके अलावा है उसको अनप्राइवेट करना है, देन वी डिसाइड दिस ओनली, राइट। देन क्लिक अनप्राइवेट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स, तो फिर इस केस में क्या करेगा, सिलेक्टेड है उसी को सिर्फ अनप्राइवेट करेगा। लेट्स क्लिक हियर, नाउ वी जस्ट अनप्राइवेट हियर, राइट। अब हर एक ईयर का इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मिल गया, राइट। ईयर है, कौन सा मंथ है, राइट, चेंज परसेंटेज कितना है एंड इसका वैल्यू क्या है। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग, राइट। हर एक केस में वी आर गेटिंग द चेंज परसेंटेज। इसको सबसे लास्ट में कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने इसको कर दिया चेंज परसेंटेज का, ईयर आ गया, उस ईयर का मंथ आ गया, और राइट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, राइट। एट्रीब्यूट जहाँ पे था इसको हम देते हैं इसका ईयर, ईयर्स, ठीक है। नाउ अगेन आई जस्ट सेव दिस, राइट, एंड इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसको। नाउ दिस डेटा सेट इज लोडेड हियर, राइट, पावर क्वेरी के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अब आपका डेटा इस तरीके बन गया, ईयर्स आ गया यहाँ पे। देन अब इस ईयर्स को मैं एक्स एक्स पे लेकर जा सकता हूँ, एंड देन वी कैन क्रिएट द रिपोर्ट लाइक दिस। यस, तो जस्ट हमने पास किया है वैल्यू, राइट। देन वी जस्ट राइट पास हियर द ईयर, ईयर अब आ गया आपके एक्स एक्सिस, एंड देन नेक्स्ट आई जस्ट पास हियर द वैल्यू। हर एक साल का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पहले जब हम क्रिएट कर रहे थे एक बार में हम एक ही साल का डेटा यहाँ पे डाल पाते, राइट। हाँ, हाँ, राइट, ठीक है। तो वो फिर हम एक बार में एक ही लेकर जाते, बिकॉज उसका जो हेडर था, राइट, न्यूमेरिक कॉलम आ रहा था, राइट, 2011-26, उसको हमने क्या अनप्राइवेट किया। अब सारा का सारा डेटा वहाँ पे आ गया, राइट, सिंगल कॉलम के अंदर, एंड हर एक रो के अगेंस्ट वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट, राइट। सो आई सेड, हाँ, हाँ, वन क्लिक में सिर्फ हो गया यहाँ पे, right? हाँ, यस, राइट। इवन साइसेंस में अच्छा खासा काम करना पड़ता है इसी चीज को करने के लिए, राइट। साइसेंस इफ यू वर्क ऑन साइसेंस, राइट, देन वी विल डू द सेम लॉट्स ऑफ थिंग, राइट, स्पेशली फॉर दिस। उसमें डेटा क्यूब बनता है पूरा कंप्लीट, राइट। यस, नाउ राइट, लेट्स सी, राइट, हियर वी हैव द इंफॉर्मेशन। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, राइट, वी आर जस्ट शोइंग राइट हियर, बट इस डेटा को हमने पहले फिट करने के लिए बनाया है इसको, राइट। इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करनी पड़ी, so that we can just produce such kind of report also। and यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्लाइसिंग पे भी उसको यूज कर सकते हैं, right? So if I just add here slicer, तो इसमें हम ईयर को भी डाल सकते हैं, I'll use here slicer and then इसमें हम यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं, right? तो here we have these are some unique years, right? एंड आप इसके बेसिस पे हम अपने डेटा को स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं, राइट। हियर वी हैव द ऑप्शन। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ गई, जब हमारे रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है, राइट, एंड उस रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए इफ डेटा इज राइट नॉट इन परफेक्ट शेप, उसको शेप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट। एंड दैट समथिंग राइट वी हैव इट। इस पे थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, आई राइट पिक द स्लाइसर, वर्टिकल लिस्ट की जगह पर पिक द टाइल, देन
नाउ हियर वी हैव द ईयर, जिस भी ईयर का डेटा हम सिलेक्ट करेंगे राइट अकॉर्डिंगली इट इज राइट फिल्टर आउट फ्रॉम हियर. नाउ लेट्स राइट मूव अहेड एंड अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं. देन अब हमने देखा यहाँ पे कि अभी हमने अनपाइवेट किया था एंड इट इज वर्किंग फाइन. दूसरा डेटा हम पिक करते हैं. राइट नाउ इट इज समथिंग वेरी डेंस डेटा एंड इसमें भी हमने कुछ रिप्लेसमेंट किया था. एट 1 2 3 4 5 6 7 8. मुझे इसमें से कुछ कंट्रीज है उसको फिल्टर आउट कर देना है राइट. सारे सारे कंट्री नहीं रखना है. आई जस्ट वांटेड टू फिल्टर आउट सम सर्टेन कंट्रीज. तो मैं यहाँ पे गया. देन मैंने यहाँ पे बोला ठीक है आई जस्ट ट्राई टू रिमूव इंडिया राइट. देन आई जस्ट ट्राई टू रिमूव द सिंगापुर राइट एंड देन आई क्लिक ओके. सिर्फ इन्हीं को रखेंगे राइट. यही कंट्रीज है इसी का हम देखते हैं एनालिसिस करके कि हाउ इट इज राइट जस्ट वर्किंग. सो बांग्लादेश है, पैलेस्टीन है, ताइवान, साउथ कोरिया, लेबनान, देन these countries here we have right. अब इसको ये डेटा आपका बिल्कुल क्लीन है राइट एंड इवन यू कैन जस्ट यूज दिस राइट फॉर राइट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. डायरेक्ट इसका हम यूज करके चार्ट बना सकते हैं राइट. तो दिस थिंग राइट कैन बी डन हियर. देन नेक्स्ट आई विल गो टू ऑर्डर्स राइट. अब ऑर्डर्स वाले फाइल पे फिर से आ गए हम लोग एंड अब इसमें हमारे पास राइट कई सारे ऑप्शन है राइट इसको डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का. ऑल्दो दिस डेटा इज वेरी क्लोन राइट वेरी क्लीन बट फिर भी हम इसको राइट क्लीन और क्लीन अप कर सकते हैं. यदि हमें कुछ और कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करना है देन वो सारा काम भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. तो आई जस्ट गो हियर राइट ऑन ट्रांसफॉर्म टैब. यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट करने का, स्प्लिट कॉलम राइट. सपोज ये वाला जो कॉलम है उसको मुझे स्प्लिट करना है राइट बाय डेलीमीटर हाइफन. तो हम यहाँ पे जाएंगे बाय डेलीमीटर क्लिक करेंगे देन वी राइट पास हियर द हाइफन राइट एंड हमें बोल रहे हैं कि ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर राइट मोस्ट ऑकरेंस लेफ्ट मोस्ट ऑकरेंस राइट. हमने बोला कि नहीं ईच कर तुम दैट्स क्लिक ओके. नाउ वी आर डन राइट. अभी जैसे हमने इसको इस पे परफॉर्म किया इस टास्क को राइट हियर यू कैन सी दैट इसने 3 राइट डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट कर दिए. तीनों डेटा को इसने स्प्लिट कर दिया अलग अलग राइट. ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 3 राइट. बट मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से स्प्लिट नहीं करवाना है. आई रिमूव दिस राइट एंड आई वांटेड टू स्प्लिट दिस राइट बट एक अलग कॉलम में दूसरे कॉलम में मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है राइट. इसी जो ओरिजिनल डेटा है जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा. मुझे यहाँ पे अलग कॉलम में बनाना है. तो फॉर दैट राइट विल गो ऑन ऐड कॉलम हियर राइट. ऐड कॉलम में जाएंगे अंडर ऐड कॉलम हियर वी हैव द एक्सट्रैक्ट. जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सट्रैक्ट. अब मुझे कहाँ से करना है पिक टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर. इस पे क्लिक करो राइट एंड देन मैंने बोला कि यहाँ पे हाइफन राइट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर. हाइफन के बाद जो वैल्यू है उसको तुम उठा लो. आई जस्ट क्लिक ओके. नाउ वी आर डन एंड यहाँ पे देखो लास्ट में एक डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. सो हियर वी हैव दिस डेटा दैट डेटा इज क्रिएटेड. टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर यहाँ पे आ रहा है. इसको रीनेम कर देंगे. देन वी सी दैट ईयर एंड आईडी ठीक है. बट अब मुझे इसमें से सिर्फ ईयर चाहिए राइट. तो ईयर तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर से जाएंगे यहाँ पे क्या यहीं पे स्प्लिट कर दो इसको. इस हर एक डेटा को हमें हटाना है तो आई विल स्प्लिट दिस राइट बाय डेलीमीटर एंड आई क्लिक ओके. नाउ इट इज जस्ट रिपीट एक्सट्रैक्ट. अच्छा अच्छा हाँ एक्सट्रैक्ट किया था. ट्रांसफॉर्म जो ऐड कॉलम्स है ऐड कॉलम के अंदर यहाँ पे जाओगे तो एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट में लेंथ है, फर्स्ट कैरेक्टर है, लिस्ट लास्ट कैरेक्टर है, रेंज है, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर. हाँ तो इसने क्या किया जब यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पुराना जो डेटा हमारे पास है ओरिजिनल डेटा उसमें कहीं कोई टेम्परिंग नहीं चाहिए राइट. उस केस में हम जाएंगे ऐड कॉलम्स पे राइट. बट यदि हमें यहीं पे इसको ठीक करवा लेना है तो फिर हम स्प्लिट के काम से स्प्लिट से यहाँ पे काम चला लेंगे. ठीक है. नाउ राइट इट इज जस्ट सेपरेटेड हियर. 2016 अलग चला जा गया एंड दिस राइट वी हैव राइट. तो इसमें हमने बोला ईयर है ये. तो आई स्पीक दिस एज ए ईयर राइट एंड देन इसको हम बोलेंगे दिस समथिंग हियर विद द अमाउंट. अमाउंट यहाँ पे हम लोग पिक कर लेते हैं राइट. नाउ इट इज जस्ट वर्किंग फाइन. तो इस तरीके से हम इस पे काम कर रहे हैं. इट इज राइट गिविंग अस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग.
ओके, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, एट वी जस्ट स्प्लिट किया डेटा को। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी हमारे पास दूसरे कमांड्स अवेलेबल, जैसे कि हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, देन हियर वी हैव ऑप्शन राइट इवन ट्रांसपोज द डेटा। तो कॉलम है उसको रो में, जो रो है उसको कॉलम, राइट। सो सपोज आई वांट टू ट्रांसपोज दिस वन, राइट, सेलेक्ट किया हमने इसको, देन आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट। नाउ दिस डेटा सेट विल गेट राइट ट्रांसपोज। अब रो था वो कॉलम में, एंड कॉलम जो है वो रो में चला गया, राइट, हर एक केस में इसके अगेंस्ट, राइट। यहाँ पे देखो इसका जो रो वन है, राइट, दैट इज समथिंग है, इसी को इसने एज ए यहाँ पे हेडर बना दिया है, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। हाँ, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया था, राइट, दैट्स व्हाई इट जस्ट डूइंग लाइक दिस। सेम वे मुझे यहाँ पे इसका जो रो है उसको रिवर्स करना है, रिवर्स पे क्लिक करोगे, आउट विच साइड गेट द रिवर्स, सबसे नीचे जो था ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर जो था वो नीचे चला जाएगा, इस वाले उल्टा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हाँ, बोल सकते हो एक तरह का सॉर्टिंग ही हुआ है। हाँ, देन नेक्स्ट वी हैव द काउंट कॉलम, राइट। सपोज मुझे एक डेटा सेट है, मुझे क्विकली देखना है कि टोटल कितने रोज के अंदर है, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं काउंट कॉलम का, काउंट कॉलम। नाउ इट टेल यू दैट, राइट, हाउ मेनी rows we have in certain data set. Then next here you have the data detect data type। ऑटोमेटिकली मुझे डेटा टाइप किसी का डिटेक्ट करना है, तो फिर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं राइट कॉलम का, एंड देन विल गिव अस द डेटा टाइप ऑफ राइट एनी। देन मुझे रीनेम करना है, देन विल क्लिक ऑन रीनेम, देन विल रीनेम द हेडर आल्सो। क्लिक करके भी हो सकता है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। देन रिप्लेस वैल्यू को हमने देख लिया ऑलरेडी, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर। रिप्लेस वैल्यू के केस में यदि कोई वैल्यू है उसको हमें रिप्लेस करना है किसी न्यू वैल्यू से, तो फिर हम उस केस में रिप्लेस वैल्यू लिखेंगे। यदि एरर्स आ रहा है राइट हमारे डेटा सेट में, एंड मुझे एरर को हटाना है, तो फिर उस केस में मैं एरर का डाल देंगे, वहाँ पे रिमूव एरर कर देंगे, ठीक है। नाउ पाइवट कॉलम, राइट, सपोज ये डेटा है, राइट, इसको मुझे कॉलम, पाइवट कॉलम में अपडेट करना है, सो आई जस्ट select this, then just click on right pivot, so just इसको हमें पाइवट कॉलम में कन्वर्ट करना है, so we write now we are done, I just click OK। now this data है, ठीक है। पाइवट करना है तो इसको हम पाइवट कर सकते हैं, राइट, सो लेट मी मेक दिस वन पाइवटिंग, यहाँ पे जाके विल जस्ट राइट कन्वर्ट इनटू पाइवट, राइट। अब इसमें ये आपको पता चलना, यहाँ पे राइट हमें ये बताना पड़ेगा कि वैल्यू किस में रहेगा, वैल्यूज, वैल्यूज कॉलम कौन कौन सा है, और राइट ये है, राइट, यूज द नेम इन कॉलम सिटी टू क्रिएट न्यू कॉलम, राइट, एंड देन वैल्यू कौन सा देना है, किस पे क्या देना है, सो विल जस्ट राइट रिसीव, और राइट आई क्लिक ओके। नाउ वी आर डन, इसको मैंने पाइवटिंग किया है, राइट, सो लेट्स सी हाउ आई जस्ट लुक। फिर क्या, जैसे प्राइवेट हम करेंगे टोटल नंबर रोज जो है वो दैट विल जस्ट गेट इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल जस्ट राइट गिव यू, अगेन आई राइट मूव अहेड। प्राइवेटिंग किया इसको हमने, इसके हाँ, कॉलम्स उसको डाल दिया, रोज वाले सारे कॉलम में आ गए। अब इसके नीचे कुछ डेटा है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर द बैंक। तो हटाना है हमें, अनप्राइवेट करना है, देन वी कैन टाइप जस्ट टू दैट, अनप्राइवेट कर देंगे। नाउ वी ऐड, इसी तरीके से यदि हमें सर्टेन कॉलम को मूव करना है, एक जगह से दूसरे में मूव करना है, ऑल तो इसको हम पकड़, हाँ,
तो उस केस में वो दिख जाएगा ना हमें, राइट। देख तो रहा है पूरा डेटा वो एक तरीके से, राइट। बट डिफरेंट ऐसे लिख रहा है वो उतना, राइट। बट वो देखता पूरा डेटा है। यस। ये जनरली जो काउंट जो कॉलम प्रोफाइलिंग है बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज है, राइट। मिलियंस में होता है डेटा। बट इसको कॉलम प्रोफाइलिंग के, अब जैसे इसको देखना है मुझे, तो ऑल्दो ये उसमें रहता है डेटा उतना ही, राइट। बट हमारे पास हमारा एक और काम होता है, हमें देखना होता है डेटा, राइट, सही तरीके से हर एक केस। ठीक है। डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं तो मुझे डेटा देखना पड़ेगा ना, कि क्या क्या डेटा हमारे पास आ रहा है। दूसरा, जब डेटा टाइप चेंज करोगे, अगर कुछ किसी गड़बड़ डेटा है तो अपने आप वो एरर थ्रो करता है, कोई सी भी, कहीं पे भी। तो just a minute. If you saying something. Hello, Mister, can you hear me?
हेलो।
ओके, तो वे हमने क्या किया यहाँ पे, सर्टेन एक्टिविटीज, राइट। इस सारे के सारे कमांड जितने भी हैं इसके अंदर, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। व्हाट वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म, राइट, दीज कमांड इस अंडर, जो कमांड से हम डायरेक्टली डिवाइस पे यूज कर सकते हैं, राइट। पीछे देन, अब जो सर्टेन डेटा टाइप का डेटा है, राइट, इसको सिलेक्ट करते हैं, उसी टाइप का यहाँ पे, राइट, फंक्शन है, दैट कमांड जो है एक्टिव रहता है, राइट। दूसरा यहाँ पे डिजेबल हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक किया टेक्स्ट, तो नंबर वाला जो है दैट इज राइट डिजेबल्ड हियर, राइट। सेम जो सिलेक्टेड डेट, डेट इज, बट नंबर अभी भी यहाँ पे देखो तो दैट इज समथिंग हियर विद द डिजेबल्ड वन, राइट। स्प्लिट बेसिक वाला पार्ट इसमें चल रहा है सही, राइट। इससे सिर्फ डेट है, टेक्स्ट वाले पार्ट पे चलेगा ये सही, राइट। टेक्स्ट वाला सिर्फ है। अब न्यूमेरिक, गो ऑन न्यूमेरिक नंबर्स, यहाँ पे क्लिक ऑन नंबर, राइट, एक्टिवेट हो गया नंबर और कॉलम्स, राइट, दैट इज एक्टिवेटेड, बट ये वाली है। यदि हम ऐड कॉलम्स पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास है सर्टेन टेक्स्ट वाला, जो फ्रॉम टेक्स्ट है दैट विल बी राइट ओनली एक्टिवेटेड। इसमें क्लिक करेंगे, देन अगेन राइट दिस समथिंग हियर विद, राइट। तो ये पावर बीआई क्या करता है, इट जस्ट राइट सी, राइट, कमांड्स है उसको इनेबल और डिएबल करता है एज पर डेटा, राइट, वी हैव इन डेटा टाइप, वी आर जस्ट राइट गोइंग टू सेलेक्ट, राइट, जिस पे भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके बेसिस पे जस्ट डू। अब इतने सारे हमने जो यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म किए, राइट, वी हैव नॉट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हियर। अब बट इसको देखोगे तो दिस इज समथिंग राइट ऑलरेडी, राइट, रिकॉर्डेड वन, राइट। नेक्स्ट टाइम यदि हम इसी फाइल को पास करेंगे, राइट, विद दिस ऑन दिस, चेंज करते हैं, इस उस पे अप्लाई हो जाएंगे। एंड यदि इस टाइप का जो भी क्लीनअप हमने यहाँ पे किया था, यदि नेक्स्ट टाइम, राइट, यदि हम इस पे कोई भी डेटा सेम फाइल है या फिर सेम फॉर्मेट का फाइल है एंड किसी दूसरे मंथ का है, राइट, हम इस पे अपलोड करेंगे, तो ये सारे का स्टेप जो है, राइट, दैट विल गेट अपडेटेड ऑन दैट। यहाँ पे देखो ये जा रहा है, राइट। मैं सपोज मैंने यहाँ पे फाइल का चेंज कर दिया यहाँ पे, राइट, दिस समथिंग ऑर्डर्स, अगेन गो समवेयर एल्स, एंड कोई दूसरा फाइल है, राइट, उसको हमारे पास, तो डेटा मॉडल, यदि दूसरा भी फाइल है एंड उस पर, राइट, तो उस पर भी ये क्या करेगा, इट विल राइट गेट अप्लाइड, राइट, सारे स्टेप्स रन हो जाएंगे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उसका कॉलम का नेम है दैट शुड बी राइट सेम, अदरवाइज ये फिर वर्क नहीं करेगा, रन हो जाएंगे, एंड इफ विल गो हियर, राइट, अंडर होम टैब हियर वी एडवांस क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखोगे आप, राइट, इट इज समथिंग हियर विद द ऑर्डर्स, एंड इसमें सारे सारे जो है दैट इज राइट एज एक्टिवेटेड, ठीक है। इस खुद ही इसने क्या itself recorded all these codes, and इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन है, then we can do that, right। अभी तक जो हमने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया था, ओनली हम एक सर्टेन टास्क पिक कर रहे थे, कमांड पिक कर रहे थे, एंड देन वी आर जस्ट वर्किंग हियर, राइट, एंड ये हमें तरीके से, सपोज मुझे यहाँ पे गए, हमने क्या किया, डुप्लीकेट मार्क किया, राइट, मेक दिस डुप्लीकेट, क्योंकि मुझे इस पर कुछ काम करना है, जस्ट मेक डुप्लीकेट हियर, मुझे सिर्फ, राइट, जिसका सिर्फ मोड है, राइट, इसको सिर्फ रखना है और जितने भी कॉलम्स उसको हटा दे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट, एंड देन हियर बी ऑप्शन दैट रिमूव रोज, राइट, देन अगेन हियर विद द रिमूव कॉलम्स, राइट। इस पे दो ऑप्शन आता है, रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम। रिमूव कॉलम पे जब उसी कॉलम को सिलेक्टेड वाले को रिमूव कर देगा, यदि हम रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स, राइट, एंड ओनली सिलेक्टेड वाले को रहने देगा। आज ही इसने स्प्रे कर दिया लग रहा है, क्या है, स्प्रे कर दिया इसने, पेस्ट कंट्रोल वाला आज चल रहा है, एक तो जमीन के नीचे,
right go and then remove the duplicate. So इस rows में आते हैं, then we try remove the right, keep top rows, keep bottom rows, right, keep range of rows. get suppose मुझे इसमें एक certain range of data है वही सिर्फ रखना है, then we can क्लिक करोगे यहाँ पे और यहाँ पे हम पास करेंगे कि इतने रो से लेके इतने रो तक का डेटा हमें रखना है, बाकी हमें we can try do that to here, right. then यदि हम रिमूव, ये था की वाला पार्ट है जो रखना है उसके लिए बात कर रहा था, राइट. बट सपोज मुझे रिमूव करना है, तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं. टॉप रो है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट. बॉटम रो है उसको रिमूव हैं. देन रिमूव डुप्लीकेट है उसको भी हम रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, राइट. आंसर गोइंग टू आपका जो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे 1000 रोज का ही दिखाता है प्रीव्यू. हम लास्ट रो डिलीट कर देंगे तो कौन सा डिलीट होगा यहाँ पे, 1000 वाला नहीं वाला होगा, राइट. उसी का डेटा जो है उसी पे वर्क करेगा ये, राइट. जस्ट के प्रीव्यू के लिए ओनली 1000 है, राइट. बट इसको नीचे नीचे क्लिक करते जाएंगे तो सारा दिखेगा ये, right. So if I go and then remove the duplicates here, as remove the duplicate, now here we have, right, only unique data set with us. इसका हमने लिख दिया, that is right, हमने इसका नेम दे दिया SIP mode, right. एक बनाना है, right, फैक्ट टेबल. यहाँ पे मुझे हर एक SIP, right, मुझे यहाँ पे एक प्राइसिंग देना है कि हर एक SIP मोड, यदि SIP मोड कोई है तो उसका, राइट, पर यूनिट ये हमें यहाँ पे बताना है, पर क्वांटिटी हमें कितना चार्ज इन्फॉर्मेशन देना है, राइट. तो फॉर दैट अब हमारा टास्क क्या है, एक अगेन एडिशनल ऐड कॉलम पे जाएंगे एंड ये कॉलम ऐड होगा कैसे, एक सर्टेन के बेसिस पे, राइट. तो फॉर दैट अगेन आई गो टू राइट हियर कंडीशन, देन देंगे इसमें बोलेंगे सेकेंड क्लास यदि है, राइट. हमने बोला कि कॉस्ट कॉस्ट, देन यहाँ पे हम पिक करेंगे शिप मोड एंड देन इक्वल की जगह पे यहाँ बोल देंगे कंटेंट. कंटेंट्स में यदि सेकेंड क्लास है, राइट, हम बोलेंगे सेकेंड. सेकेंड यदि है तो इसका प्राइस तुम यहाँ पे दे दो, राइट, 40. हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें टाइप करना पड़ेगा, हमें बोला 4500 पर यूनिट है. देन यदि शिप मोड यहाँ पे है, देन कंटेन कर रहा है, कंटेन है तो कंटेन कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्लास, राइट, फर्स्ट. तो इसका हमें देना है 6500. एक कंडीशन लग रहा है, कंडीशनल फॉर्म हम ले रहे हैं ना, कंडीशनल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं. देन कंटेन अगेन, देन नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट क्लास हमने दे दिया, देन स्टैंडर्ड राइट. स्टैंडर्ड यदि है तो उसका हमने आपको बताया कि जैसे समथिंग है बेटा, राइट, 5500 हमने यहाँ प्राइसिंग दे दी. और क्या नहीं, राइट, इस केस नहीं देखता है ये, तो चल जाना चाहिए इसको, लेट मी सी. ऑल्दो इसका जो एम लैंग एम, राइट, केस सेंसिटिव केसेस देखता है वो, राइट. बट इस केस में देखते हैं कि नहीं. देन सेम डे के लिए हमने बोला कि सबसे महंगा होगा तो 7000 हम दे देते हैं, राइट. सेम डे डिलीवरी हमें बात करें. ओके, नाउ एक केस में ये चल रहा है सही से, ये स्टैंडर्ड के लिए 7000 एस 7000, राइट. तो इसको हमें ठीक करना होगा, एडिट करके हम क्या करेंगे, एस इसका जो है स्टैंडर्ड. ओके, नाउ वी आर डन, राइट. आगे अब आपके पास यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन भी आ गया, राइट, कि एक सर्टेन यदि शिपिंग है तो उसका क्या, राइट, इसका कॉस्ट आएगा, ठीक है. अब भी यूज कर सकता हूँ एज ए राइट डेटा मॉडलिंग एंड देन वहाँ पे हम इसका निकाल सकते हैं कि कॉस्टिंग आ रहा है, राइट. ये सारा का सारा काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, राइट. अब इसको हम लोड करेंगे, जैसे कि मुझे एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करना था, हमने क्रिएट कर लिया. इस तरीके से क्वांटिटी इसमें यदि मुझे कोई लॉजिकल लेकर जाना है, कुछ हमें इस लॉजिक के करवाना है, राइट, देन इवन वी कैन डू दैट टू. सो लेट मी जस्ट राइट ऐड हियर द
का इंडेक्सिंग करना है, राइट। अब ये 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे फिर भी एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट करवाना है। स्टार्ट द इंडेक्स कॉलम ऑल्सो, राइट, एंड इसका नेम दे देंगे सीरियल नंबर। यहाँ पर अब देखो इसमें क्या करते हैं, हमने इसको ऐड कर दिया, राइट। नाउ वी आर डन। क्या करना है, इस वाले डेटा को, राइट, यूज करना है यहाँ पे ऑर्डर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास शिप मोड तो है, शिप मोड तो यहाँ पे है, इसको मैप कर देना है इसके साथ, राइट। सो लेट्स जस्ट सी डू इफ वी कैन डू दैट। हियर विल द मर्ज क्वेरी, राइट। मर्ज क्वेरी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, विल सी दैट मर्ज क्वेरी यहाँ पे ऑप्शन है एक। दूसरा है मर्ज क्वेरी एज न्यू, राइट। यदि उसके अंदर ही कुछ काम करना है तो फिर हम यहीं पे कर लेंगे, बट मुझे मर्जिंग तो करना ही करना है, एक नया बनाना है, नया टेबल बनाना है, राइट। तो उस केस में हम मर्ज क्वेरी एज न्यू कर लेंगे। Let's pick this one, right, first let's click here, right, and हमने बोला कि तो करेंगे। दूसरा टेबल जो हमारा है दैट इज, राइट, ऑर्डर्स यहाँ पे आ गया, पास है, और टेबल शिप मोड, राइट। अब शिप मोड पे आते हैं, यहाँ पे भी शिप मोड है, शिप मोड है, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट। आई हैव देखो लेफ्ट आउटर और फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड ओनली, राइट। तो इसने पिक कर, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, राइट, इस टाइप का भी डेटा यहाँ पे इसको बनाना चाहो, राइट, इसका ज्वाइन आप लिख कर सकते हो, राइट। यदि राइट का सारा सारा डेटा चाहिए ओनली मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो फिर हम राइट बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यदि इस वाले डेटा को मैं पहले रख तो फिर राइट आउटर बन जाता, क्योंकि वो बड़ा टेबल है, उसका मुझे सारा सारा डेटा रखना है। आई स्किप दिस, देन इसको हम क्लिक करेंगे, ओके। नाउ अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे शिप मोड के आगे एक टेबल टाइप का आ गया, राइट। से अब मुझे यहाँ पे जो भी कॉलम यूज करना है, राइट, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक करेंगे एंड इट विल आस्क, राइट, अस टू सिलेक्ट द कॉलम। सारे सारे कॉलम इसके सारे सारे सिलेक्ट करके देन क्लिक कर देंगे, ओके, देन सारे सारे कॉलम्स यहाँ पे लाइन से लग जाएगा। हाँ, यस, एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंशन यहाँ पे इसका है। मुझे क्या करना है, ओनली इसका कॉस्ट लेकर आना है कि कॉस्टिंग क्या चल रही है। कॉपी दिस, नाउ वी आर डन, एंड यहाँ पे आ गया, राइट, जो वैल्यू जो यहाँ पे पिक कर रहे थे वो, राइट। बट अभी इसका डेटा टाइप देखो, यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ रहा है, एनी। तो ऑटोमेटिकली हम इसका डेटा टाइप डिटेक्ट करवा देते हैं, so इसको ऑन ट्रांसफॉर्म एंड से दैट डिटेक्ट डेटा टाइप, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, एंड देन इसको, हाँ, ऑटोमेटिक वो करता है, वो ऑटोमेटिक कर देता है। बट हम यहाँ पे मर्जिंग कर रहे हैं ना, दूसरे तरफ से लेकर आ रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है सही तरीके से, जैसे कि यहाँ पे। अब इस केस में क्या करना होगा, जहाँ पे मर्ज कर रहे हो ना, वहाँ पे यदि आपने डेटा टाइप सही कर लिया है, तो यही सही कर लेता तो हम मुझे दिक्कत नहीं होती, राइट। यहाँ पे यदि मेरे डेटा सही है तो वहाँ पे भी, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे भी ठीक रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसको नंबर बना देते हैं, राइट, फिक्स होल नंबर, तो होल नंबर हमें बना दिया, ठीक रहेगा, right? इस तरीके से इसमें काम करेंगे, राइट। तो नाउ हियर वी राइट जस्ट यूज्ड, अब यहाँ पे आ गया आपके पास पूरा नंबर, मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। मुझे इसमें क्या करना है, क्वांटिटी जितना भी है, राइट, उसको मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकालना है कि टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, राइट। क्वांटिटी यहाँ पे है एंड देन यहाँ पे इसका प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट लेकर आना है, तो करेंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर लेंगे, तो कस्टम कॉलम पे जाएंगे, राइट। देन यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम, ये भी है द टोटल शिपिंग कॉस्ट, या शिपिंग कॉस्ट बोल देते हैं, शिपिंग कॉस्ट, राइट। देन कस्टम को रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी इंटू, क्वांटिटी इंटू क्या नाम था उसका, शिपिंग कॉस्ट ना, नहीं नहीं,
कॉस्ट कॉस्ट इसका शिप मोड डॉट दिस वन ओके नाउ हाँ तो बताना पड़ेगा उसको कि टेबल आ रहा है। अब यहाँ पे आ गया वैल्यू, शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट, इसका नेम यहाँ पे है हियर द राइट टोटल शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग मोड ये है, इतना कॉस्टिंग information, right, we can just extract from this and m कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव, राइट, इसके अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें केस को ध्यान, अदरवाइज वो सही आउटपुट हमें नहीं देगा। इवन वैल्यूज के केस में भी ये क्या है, केस सेंसिटिव ही है, वर्किंग अकॉर्डिंगली। क्या है नाउ हियर वी हैव द फॉर्मेटिंग पार्ट टू, राइट, सपोज मुझे फॉर्मेटिंग करना है यहाँ पे, तो यहाँ लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज ईच स्ट्रीम क्लीन ऐड कुछ करना है इसमें प्रीफिक्स कैन डू दैट। सपोज मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करना है, यहाँ पे गए मैंने यहाँ पे ऐड data one, right, data one then hyphen, I click OK, see this is right added here and because add column से हम यहाँ हैं, ये क्या करेगा एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर देगा हमारे लिए। बट इसी काम ट्रांसफॉर्म से करेंगे, राइट, देन इट विल राइट जस्ट डू, यहाँ पे है ऑप्शन ऐड प्रीफिक्स सफिक्स, तो ये क्या करेगा जो सेलेक्टेड कॉलम है उसी में इसको ऐड करेगा। कि मैंने अभी सिर्फ सिलेक्ट किया प्रीफिक्स वाला, इसमें हम ऐड करें सफिक्स, सफिक्स में हमने बोला कि रो या रॉ, रॉ यह भी है, पहले में हाइफन दे देते हैं। अब ये क्या है सारा मतलब इधर ही आगे के नाउ राइट हियर वी है। अब ये इसी पे काम कर रहा है यहाँ पे, दिस आई थिंक इट कैन बी डन। तो ये डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल है, राइट, पावर क्वेरी के अंदर एंड वी कैन यूज दिस जस्ट ट्रांसफॉर्म डेटा हियर, राइट। अब यदि मैं ये यहाँ तक जो टास्क था, राइट, यहाँ पे शिफ्ट मोड एंड ऑल, राइट, सपोज मैं इन सबको नहीं कर रहा हूँ, इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, इस सारा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मर्ज को ये इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे एक अलग से टेबल बना लिया कॉपी कर, इसमें हमारे पास राइट इसका इन्फॉर्मेशन है कॉस्टिंग का कि क्या एक शिफ्ट मोड होगा तो इसका क्या कॉस्ट बना। देन आई जस्ट राइट सेव दिस, राइट। अब ये जो दो डेटा है फिल्म डेटा एंड, तो इस पे राइट क्लिक करो एंड देन हियर योर ऑप्शन टू इनेबल लोड, राइट, तो अनचेक कर देंगे। अनचेक जैसे ही करेंगे ये ये यहाँ पे राइट अगेन आई जस्ट पिक दिस वन एंड ये लोड हम इसको नहीं करना है, इसलिए हम इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। एंड ये इसका जो फॉर्मेट होगा इटैलिक हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज एंड अप्लाई। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पावर, अब इसको हटा दिया तो ये आपका जो विजुअल है वो भी इम्पैक्ट करेगा। क्या था उसको हमने हटाया है यहाँ से, हटा दिया तो हट गया, ये हटाओ उसको, जरूरत नहीं इसकी, या फिर रहने देते हैं एडजस्ट। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो हमारे पास डेटा सेट है, राइट, एक तो ये है, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट देखना है एंड इसका टोटल मुझे दिखाना है कि टोटल कितना आ रहा है, राइट, वांटेड टू राइट पिक। तो आई जस्ट गो ऑन दिस टेबल व्यू, राइट, यहाँ पे शो करना है शिप मोड पे शिपिंग है उसका कॉस्टिंग कितना आ रहा है, right, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लेकर जाना है इस वाले, right, again I'll go here and then we just create here new column, right, new डेटा पिक कर लेते हैं, so डेटा फ्रॉम, right, दूसरा टेबल का नेम
हाँ हाँ, दोनों में डिफरेंस है कि वो ETL लेवल पे हो गया, राइट, यानी कि पावर टाइप पे, राइट, उस पे डेटा लेवल पे ही हो गया कंप्लीट, राइट। वहाँ यहाँ पे हमें कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, वो डेक्स फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे ड्राइव फील्ड टाइप की हो गई, राइट। हाँ, एक तरह से करना पड़ेगा, बट वो जो है हमने वहाँ पे ETL वाले पार्ट पे कंप्लीट मेन डेटा के अंदर ही हम, यस राइट। तो यहाँ पे गए हम, फिर मुझे यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट, न्यू कॉलम है, न्यू कॉलम पे जाके राइट, इस पे हम बहुत कम, इस वाले पार्ट पे जितना क्लीन डेटा है ना, क्लीन डेटा ट्राई करते हैं एक्सट्रैक्ट SQL के अंदर, SQL कोड से डायरेक्ट, या फिर हाँ SQL में कर लिए, ज़्यादा सारा का सारा काम, क्लीन डेटा आ गया हमारे पास, देन हम उसी डेटा को विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं। कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट ऑर्डर शिप मोड, राइट, यहाँ पे तो है ही हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू, इसमें जो है कौन सा, कॉस्ट, शिप कॉस्ट, राइट। ये जो रिलेटेड फंक्शन है, दिस इज समथिंग, यस, लुकअप टाइप का वो काम करता है, तभी वर्क करेगा जब इसका रिलेशनशिप होगा एस्टैब्लिश, राइट। रिलेशनशिप कैसे करता है, राइट, ऑन दिस, अब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल आ गया, दैट इन्फॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग, राइट। अब अगेन हम जाएंगे रिलेशनशिप, क्योंकि हमने टेबल दोनों का सेम बनाया था तो वहीं से उसने उठा लिया है, राइट, सेम टेबल था। तो हम रिलेशनशिप देखते हैं कि मॉडल व्यू में जाके, राइट, विल गो ऑन मॉडल व्यू हियर, अब यहाँ पे देखो उसने बना दिया है, ये जो शिप मोड है दैट इज, राइट, इसमें यूनिक आइटम हमारे पास है एंड उसका इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे कैप्चर किया है, ऑर्डर्स टेबल है दैट इज ट्रांजेक्शन, राइट। हाँ, अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं, हेडर पिक कर लिया उसने, हेडर, हाँ, तब उसके इसमें हम मैनुअली इसको करना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, जैसे कि मैं, हाँ, यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ हाँ, यस। अब सबको ना एक और काम करना है, मुझे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट तो करना है, इसका करना ही है, बट एक सर्टेन कैटेगरी के बेसिस पे लेकर जाना है, राइट, कैटेगरी भी लेकर आना, कैटेगरी का प्राइस मुझे वहाँ पे चाहिए, राइट। तो उसके से हम क्या करेंगे, राइट, काम यहाँ पे हमने इसके साथ किया है, राइट, सेम काम हम उसके साथ भी करेंगे, लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इस डेटा को, राइट, अगेन विल गो टू पावर क्वेरी, एंड जो कॉपी करके डेटा लाएंगे उसका हम कॉलम का नेम चेंज कर देंगे, उसमें जो कॉलम का नेम है वो, राइट। तो हम यहाँ पे ऑर्डर टेबल को फिर से हम करते हैं डुप्लीकेट, एंड यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे, हम यहाँ को कैटेगरी या फिर रीजन ले लेते हैं, राइट, रीजनल डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें रीजन का देते हैं, अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं, तो वी आर गुड, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, देन वी ट्राई रिमूव अदर कॉलम, में सिर्फ रीजन मिल गया हमें, देन रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट यहाँ से, तो ये वी हैव द रीजन, राइट, सारे सारे रीजन से मिल गए।
बट मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका रीजन का नेम है, इसको हम चेंज कर, मैंने यहाँ पे बोला दैट इज समथिंग हियर वी हैव द मास्टर डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मल्टीप्लायर ऐड कर देते हैं कि यदि इस रीजन का डेटा है तो इसको हमें शिपिंग कॉस्ट जो हम ड्राइव करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ ऐड किया, एट जस्ट ऐड कॉलम, जस्ट गो टू ऐड हियर द कंडीशनल कॉलम ही ऐड कर लेते हैं, राइट। ऐड हियर द कंडीशनल कॉलम, इसमें मैंने मास्टर इन्फो, देन साउथ है, हमें एक ही लेके चलते हैं, साउथ है तो इसमें 0 कर दो, राइट। एंड यदि मास्टर इन्फो इक्वल्स टू, राइट, तो इसमें 7 कर दो, राइट। एंड उसको 5 कर दो, 705, आई क्लिक ओके। नाउ अब हमें हर एक रीजन के बेसिस पे, राइट, यहाँ पे वैल्यू देखना है, लिख देते हैं मल्टीप्लायर, मल्टी मल्टी या वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसको पब्लिश करूंगा, मैंने इसका दिया है, राइट, इसका नेम मास्टर इन्फो मैंने डाल दिया है, राइट। तो जस्ट राइट पब्लिश दिस, अप्लाई। अब हम आते हैं वहाँ पे पावर व्यू, पावर प्राइवेट है, राइट, वहाँ पे ऑल द विल जस्ट कवर दिस इन, राइट, डेटा मॉडलिंग जब हमारा होगा कवर करेंगे। देखो नहीं बनाया इसने, इसका रिलेशनशिप नहीं बना, जब सब्जेक्ट है ये, राइट। कॉलम नेम हमने क्या किया, चेंज कर दिया, अब इसको नेम मिला नहीं है, राइट। नीचे के डेटा को नहीं देखता है वो, कॉलम के नेम को देखता है, तो मिला नहीं, तो इसने यहाँ पे, राइट, इसका रिलेशनशिप बनाया नहीं। कौन सा, ये अपने आप बन जाता है, नहीं नहीं, डेक्स से फंक्शन हमने नहीं बनाया, रिलेटेड फंक्शन जो है, राइट, ये तभी चलेगा जब यहाँ पे वो होगा, जैसे कि मुझे अब इसमें से भी डेटा पिक करना है, जैसे मास्टर इन्फो है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो है रीजन के लेवल पे, हर एक रीजन के लेवल है, मल्टीप्लायर इसका है तो, हाँ, देखते हैं उसको, राइट, एक बार उसको देखेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे टेबल लेकर आ गए हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रिलेटेड फंक्शन लगाया था टोटल कॉस्ट के लिए, सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर उसके लिए भी, इस पे आ गए, राइट। देन आई राइट रिलेटेड, राइट, देखो यहाँ पे रिलेटेड पिक किया, अब रिलेटेड में सिर्फ शिपिंग कॉस्ट नहीं रहा, राइट, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका रिलेशनशिप इसके साथ बना ही नहीं है, रिलेशनशिप हमें पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज कर पा रहे थे बिकॉज हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया था उसके साथ, राइट। तो नाउ अगेन आई गो हियर, इसके स्टैब्लिश करना है मुझे, मास्टर इन्फो इक्वल टू रीजन, राइट, यहाँ पे जाएंगे, भी है, इसको पकड़ के इसके साथ इसका रिलेशनशिप बना देंगे, राइट। यहाँ पे खुल गई, इसमें आप बताओगे कि रिलेशनशिप इसका कौन सा है, कार्डिलिटी क्या है इसकी, मिनट वन है, 1 2 मिनट, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन दोनों तरफ से हमें लेकर जाना है, एक तरफ से करवाना है, इसको एक ही तरफ से रखते हैं, सेव दिस, राइट, एंड इसको एक्टिव कर दिया हमने, जो रिलेशनशिप था वो एक्टिव। अब अगेन यहाँ पे आप आओगे डेटा व्यू में, and मुझे यदि कॉलम क्रिएट कर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रिलेटेड, राइट, एंड रिलेटेड टेबल के अंदर ये भी था, आ गया। अब जिस भी वैल्यू को हमें पिक करना है, वी कैन राइट जस्ट पिक दैट, एंड वहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू राइट पास दिस, देन जस्ट गेट मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने निकाला है उस, राइट। नाउ अब ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा, फाइनल वैल्यू, फाइनल फाइनल रीजनल कॉस्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट परफॉर्म द डेटा मॉडलिंग एंड ETL एक्टिविटी इन पावर BI।
इसमें इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे कमांड्स है what we can use right while just working on Power BI to perform ETL task. Right? That's it for today. And next session में थोड़ा सा पावर क्वेरी का और करेंगे, right? Then we'll move to DAX function directly. Okay guys.